Good morning, children. Today we are going to discuss exercise 11.3, and this exercise will study about the area and volume of 3D shapes. First of all, 3D shapes. In previous exercise you studied quadrilateral, rhombus, trapezium, and earlier classes you have also read circle. The circle, quadrilateral, pentagon, all polygon, these are 2D shapes. 2D shapes means having two dimensions, length and breadth. Now we are starting with solid shapes or 3D shapes. 3D shapes means shapes having three dimensions, length, breadth and height. You just imagine your room, your maths book, these all are 3D shapes because they have three shapes. Dimensions. These dimensions are length, breadth and height. See this book. This book is a 3D shape. It has length, breadth and height. This thickness is height, length and breadth. So this book is a 3D shape. So all shapes having three dimensions is known as solid shapes. Okay. Now come with first solid shape is cuboid. You've read in earlier classes also. This book is a cuboid, this room is a cuboid. What is cuboid? Cuboid is a 3D shape or a solid shape made up of 6 rectangles in which opposite rectangles are congruent. Congruent means shapes with same size. Okay? If two figures or two things are same in shape and size, and these are congruent. So, cuboid is a solid shape, 3D shape with 6 rectangles in which opposite rectangles are congruent. Imagine the room or this book. This book is a cuboid. Okay. In this top and bottom rectangles are congruent rectangles. Okay, जो top में जितना size है same जो है bottom में है rectangular है, तो ये क्या है, दो opposite congruent rectangles हैं. फिर अगर हम साइड की बात करें, साइड this and these two rectangles are also congruent, and this front and back is also, these two rectangles are congruent. So this book is made up of 6 rectangles in which opposite rectangles are congruent. This room is also, जो हमारी फ्रंट वॉल है वो बैक वॉल के कॉन्ग्रेंट है, साइड वॉल्स कॉन्ग्रेंट है, रूफ और ये सीलिंग और फ्लोर भी कॉन्ग्रेंट है. तो this is a cuboid. In cuboid there are 6 faces. Each rectangle is called a face. Each side is a face. So see, this is the figure of a cuboid. It has 3 dimensions: length, breadth, height. There are 6 faces. Clear? अब आपने पढ़ा कि रेक्टेंगल में एरिया फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं. इनमें एरिया और कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इन 3D shapes we have terms TSA, LSA. What is, first of all, what is SA? This SA means surface area. Surface area means area of a face. अब अगर हम रूम की बात कर रहे हैं, इस रूम की ये जो फ्रंट वॉल है, ये वॉल क्या है, रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट. सो सरफेस एरिया दैट मीन्स एरिया ऑफ फेस. सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फेस. ठीक है. TSA, TSA is total surface area. That means sum of area of all the faces is TS. Clear? So first of all, we learn how to find TSA of a cuboid. Okay. See, this book is a cuboid. Length, breadth and height. और you can imagine room also. Okay. अगर हमें ये हमारी फ्रंट वॉल है, इस फ्रंट वॉल का अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या होगा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एल इनटू बी. इसके अपोजिट जो है उसका भी सेम होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. दैट मीन्स एल बी प्लस एल बी, 2L. Next
अगर हम फाइंड आउट करें साइड के लिए, अब इसमें क्या क्या डायमेंशन गिवन है, ये है ब्रेड्थ और ये सेकेंड डायमेंशन है हाइट, तो क्या हो जाएगा b इंटू एच, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये BH है, इसके अपोजिट जो होगा ये भी ब्रेड्थ इंटू हाइट BH होगा, BH प्लस BH इज 2BH प्लस और क्या रहेंगे हमारा साइड रहेंगे, इसमें क्या क्या कौन कौन सी साइड है, लेंथ और हाइट, तो L इंटू एच, और अपोजिट भी क्या होगा L इंटू एच, LH प्लस LH इज 2LH 2H। तो TSA of a cuboid is sum of area of all the faces, total surface area। 6 faces हैं, 6 faces का एरिया फाइंड आउट करो, सबका सम कर दो, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2H, 2 की यूज किया क्योंकि अपोजिट जो है वो तो क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अब इस वॉल की अगर हम बात करें, इस वॉल में कौन कौन सी साइड्स आई हैं, एक तो ये रूम की ब्रेड्थ ले रहा है और एक हाइट ले रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा B इंटू एच, इसके जो अपोजिट वॉल होगी वो भी क्या होगा B इंटू एच। साइड वॉल में क्या क्या आ रहा है, लेंथ आ रही है और हाइट, L इंटू एच, उसके अपोजिट लेंथ इंटू हाइट LH, LH LH 2LH एंड इज BH 2BH। अब फ्लोर का रहेगा, फ्लोर में कौन कौन सी साइड आ रही है, लेंथ और ब्रेड्थ। LB सीलिंग में भी क्या आ रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ, तो LB प्लस LB 2LB, सबका सम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2H। क्लियर? So this is TSA of cuboid, total surface area, that means area of all 6 faces of a cuboid। सिंपल है, क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, 6 रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके सबको ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज LSA। LSA इज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल इज बेसिकली साइड, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल में बोलते हैं, क्वाड्री मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड्स, तो LSA इज लेटरल सरफेस एरिया। Here this lateral surface area means area of 4 faces excluding the base। अब अगर इस रूम की हम बात करें, इस रूम का बेस क्या है, फ्लोर है और सीलिंग है। अगर इस रूम के बेस को हम रिमूव कर दें, there are 2 bases, सीलिंग एंड फ्लोर, तो इन बेसिस को रिमूव अगर कर दें तो क्या रहेगा हमारे पास, सिर्फ 4 साइड्स रहेंगे, तो एरिया ऑफ दिस 4 फेसेस इज कॉल्ड LS। क्लियर? LSA का सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी फिगर के बेसिस को रिमूव करना है, एक बेस है तो एक रिमूव करो, 2 बेस है तो 2, जितने भी बेस हैं उनको रिमूव करके बाकी जो रहेंगे उन सबका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्यूबॉइड में से हम बेसिस रिमूव करें तो हम ये बॉटम और टॉप बेसिस रिमूव करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स रह जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा 4 वॉल्स का, अगर हम इस वॉल की बात करें तो इसका एरिया क्या था, ब्रेड्थ इंटू हाइट मीन्स BH, और अपोजिट का भी क्या होगा BH, तो 2BH हो गया। साइड वॉल का क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, तो ये क्या होगा LH 2LH, इन दोनों को ऐड करके तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ 4 फेसेस। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 और H कॉमन है, अगर हम 2H कॉमन ले लें तो क्या रहेगा L प्लस B, दैट मीन्स LSA क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 फेसेस 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और यू कैन राइट 2H इंटू L प्लस 2H इंटू L प्लस B। LSA इज लेटरल सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग बेसिस। क्यूबॉइड में 2 बेस हैं, क्यूबॉइड सिंपल रूम को इमेजिन करो, रूम में फ्लोर और सीलिंग जो है वो बेस है, बेस को हमने हटा दिया तो बाकी 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट किया। दिस इज कॉल्ड LSA। TSA 6 फेसेस का एरिया, LSA 4 फेसेस का एरिया। क्लियर? नाउ वॉल्यूम। वॉल्यूम इज हाउ मच इट कैन अकोमोडेट, कैपेसिटी, इस रूम की कैपेसिटी क्या है, कैसे फाइंड आउट करोगे, ये रूम कितना अकोमोडेट कर सकता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अगर हम पहले फ्लोर की कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं कि फ्लोर में कितने आ सकता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जितना उसका एरिया होगा, फिर उसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रूम की कैपेसिटी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू
ऑफ 6 कॉन्ग्रेंट स्क्वायर्स। रेक्टेंगल्स किसमें थे? क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में क्या होता है? रेक्टेंगल से बना होता है। अपोजिट रेक्टेंगल्स जो है सिर्फ वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्यूब में क्या होता है? सारे के सारे स्क्वायर जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, मतलब सारे स्क्वायर्स का साइज सेम होता है, सारी जो फेसेस हैं क्यूब के वो सेम होते हैं। डाइस यू कैन से, चॉक बॉक्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्यूब। So find out TSA, LSA and volume. अब TSA again total surface area, that means area of all the 6 faces. अब क्या होगा 6 faces का एरिया? ये सारे faces क्या हैं? स्क्वायर है। अगर एक साइड हमारे पास स्क्वायर की A गिवन है तो उसकी ब्रेड्थ भी A होगी और उसकी हाइट भी A होगी। स्क्वायर तो सारी साइड सेम होती है, तो TSA क्या होगा? एक स्क्वायर का एरिया निकालें, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि सारे स्क्वायर्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। एरिया स्क्वायर इज साइड स्क्वायर एंड 6 से स्क्वायर, दैट मींस एरिया ऑफ ऑल दी 6 फेसेस। सो TSA ऑफ क्यूब इज 6 स्क्वायर। नाउ LSA अगेन एक्सक्लूडिंग द बेसिस। अब रूम अगर क्यूब की शेप का रूम है, अगेन उसमें कितने बेसिस हैं? ये फ्लोर और सीलिंग, इन दो को रिमूव करोगे कितने स्क्वायर्स आएंगे? 4 वॉल्स, तो 4 स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा? 4 स्क्वायर। सो दिस इज LSA। वॉल्यूम अगेन क्यूब कितना अकोमोडेट कर सकता है? क्या उसकी कैपेसिटी है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सभी तो A है। A into A into A is A cube. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A cube. Clear? You have to learn all these formulas. Now the next solid shape is cylinder. Cylinder is a solid shape with 3 faces. Out of this 3, 2 are circular. सिलेंडर के जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं? सर्कल्स, और एक हमारे पास होता है कर्व फेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है चॉक। दिस चॉक इज अ सिलेंडर। इसके जो 2 बेसिस हैं वो क्या है? सर्कुलर है, और एक फेस क्या है? कर्व फेस है। दिस इज अ सिलेंडर। So it has 3 faces, 2 bases जो है वो सर्कल है और एक हमारे पास कर्व शेप। Fine. Now find out this TSA, LSA and volume. First we are finding LSA. LSA is, or you can also say this CSA, because L is generally used for lateral. L is lateral, that means side, but in cylinder there is no side. LSA, CSA both are correct, but mostly we use CSA. CSA is curved surface area. Curved surface area, that means सिर्फ इसी फेस का एरिया निकालना है, और LSA मैंने बताया था बेसेस को एक्सक्लूड करना है। अब इस चॉक में 2 बेस है, टॉप और बॉटम, इनको हटाना है, तो सिर्फ इस कर्व्ड फेस का एरिया फाइंड आउट करना है। दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। अब ये 2 पाई RH क्यों होता है? इसके लिए एक एक्टिविटी है, 1 रुपए के कॉइन लो, कोई भी कॉइन्स लो, 5 रुपीज के कॉइन ले लो, 1 रुपए के ले लो, उन कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखना शुरू करो। सेम साइज के होने चाहिए। जब आप एक के ऊपर एक कॉइन रखोगे तो देखना तुम्हें एक सिलेंडर की शेप मिलेगी। ठीक है? अब उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें क्या कवर करना है? जो कॉइन्स है उनकी सरकमफेरेंस और उनकी हाइट। अब जो कॉइन्स है वो सर्कुलर होगा, सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर, और उस 2 पाई आर को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हमने कॉइन्स रखे एक के ऊपर एक, ऐसे एक के ऊपर एक कॉइन्स रखे हुए हैं, हमारे पास शेप मिलेगी वो होगी सिलेंडर। और जब हम एरिया फाइंड आउट करें तो हम इन कॉइन्स की सरकमफेरेंस ले रहे हैं। कॉइन की सरकमफेरेंस क्या होगी? सर्कुलर है ये, तो सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। तो जितने हम कॉइन्स ले रहे हैं, जो भी हाइट है उसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमने क्या किया? कर्व्ड सरफेस एरिया कवर कर लिया, तो इनटू हाइट। दिस इज CSA ऑफ सिलेंडर। ये एक्टिविटी भी कराऊंगी मैं आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH। अब फाइंड आउट करते हैं TSA।
CSA हमने फाइंड आउट किया सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA मींस हमें जो बेस है वो भी इंक्लूड करने हैं। तो TSA में हमें सारे तीनों फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना है। अब तीनों करना है तो बीच कर्व्ड का तो क्या हो गया 2πRh, और ये जो दो सर्कल्स है इनका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा πr²। हमारे पास कितने सर्कल्स हैं 2 है, दोनों सेम ही साइज के तो हैं, प्लस 2πr², ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया, इसमें दोनों सर्कल्स का एरिया ऐड कर दिया तो क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्या क्या कॉमन आ सकता है 2πr, तो हमने 2πr कॉमन लिया तो क्या रहेगा यहाँ पे h और यहाँ पे r, तो TSA is 2πr into r plus h. This is TSA of cylinder and LSA of CSA is 2πrh. उसके बाद वॉल्यूम इज उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना अकोमोडेट कर सकता है, कैसे फाइंड आउट करोगे। ये सिलेंडर है, सपोज जैसे ग्लास है सिलेंडर के फॉर्म में, अब वो ग्लास कितना अकोमोडेट कर, उसकी क्या कैपेसिटी है। पहले तो उसका बेस का फाइंड आउट करो, बेस क्या है सर्कल है, जितना सर्कल का एरिया होगा बेस में उतना ही ले सकता है। सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और जितनी उसकी हाइट है उस सर्कल के एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा उसकी कैपेसिटी। तो वॉल्यूम इज πr²h। क्लियर, ये फॉर्मूले तुमने लर्न करने हैं, जब तक फॉर्मूले नहीं लर्न करोगे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। फाइन, तो क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, TSA, LSA, वॉल्यूम। अगेन आई एम टेलिंग यू TSA इज टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितने भी उस फिगर में फेसेस हैं उन सब फेसेस का एरिया का सम। LSA और CSA बेसेस को एक्सक्लूड करना है। जैसे हम सिलेंडर की अगर बात करें, सिलेंडर में 2 बेस है, तो वो जो सर्कल्स हैं टॉप और बॉटम में वो बेस है। इस चौक को ऐसे भी रख सकते हो, वैसे भी रख सकते हो, ये दोनों क्या है इसके बेस है। तो अगर हम बेसिस को रिमूव करते हैं तो सिर्फ एक ही बचता है, ये कर्व सरफेस एरिया 2πRh, और टोटल में सर्कल्स को भी इंक्लूड करना है तो 2πr into h plus r और r plus h। वॉल्यूम इज उसकी कैपेसिटी क्या, हम कितना होल्ड कर सकते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट यू विल लर्न ऑल दिस फॉर्मूले, देन विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3 that will start on Friday. Today you are to complete 11.2 and learn this formula. Okay.